उन्होंने हमारी अर्न लीव से 86 लीव्स काट दी। इसलिए काट दी, दरखास्त ही नहीं है सर। एक तो नॉन कंप्लायंस है, हाईएस्ट ऑर्डर का इनडिसिप्लिन है, बट द ऑनरेबल कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू काइंड मेक द पेमेंट। वी हैव मेड द पेमेंट। कहाँ से पेमेंट करते हैं? अब जो सैलरी ड्यू है उस महीने काम ही नहीं किया सर। एरोगेंस का लेवल ये है सर कि ऑफिस में कुत्ते को लेकर बैठ जाती। मैं इनसे पूछा कि जवाब क्या दिया, इनका जवाब है कि सी इज डॉग डॉग लवर। भाई डॉग लगा रहे तो घर में रखे ना कुत्ते सर, के ऑफिस में लेके आए। मतलब शी इज द इस लेवल का एरोगेंस है, और इसके बाद ही कह रहे पेमेंट नहीं कर रहे। We have made the payment by deducting the money. And petitioner, sir, please allow me to speak 2 words. Sir, actually they transferred me to Vice Chancellor's office. That is against rule. There is no post of Deputy Registrar in Vice Chancellor office. Sir, they could give me additional responsibility of any cell, any special cell, although this cell is imaginary. Sir, this cell doesn't exist. But they removed me from my sections because they could do their corruption easily. Sir, I will request you, sir. Firstly, I raised question against more than 150 illegal appointments of class 3 in the university. Sir, that time they curtailed my authority and they released an order, asked my junior officer to submit files regarding class 3 and class 4 after bypassing me directly to registrar. सर देन वाइस चांसलर डॉक्टर जैन, इन्होंने प्रशासन विभाग को निर्देश दिया कि इनके इंक्रीमेंट के प्रोसीडिंग्स की जाए. सर, वाइस चांसलर पोस्ट इज अ टेन्योर पोस्ट एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फिक्स सैलरी. सर, सो आई रेज्ड ऑब्जेक्शन, तो इन्होंने मुझे बाईपास करके मेरे जूनियर ऑफिसर के थ्रू वो ऑर्डर इशू करा लिया. सर, जब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन लेटर भेजा तो वो ऑर्डर रिवोक कर दिया गया. सर, एक आरटीआई में पिटिशनर ने इनके इस इंक्रीमेंट प्रोसीडिंग्स की जानकारी चाहिए, तो हमारे जूनियर ऑफिसर ने उसको गलत जानकारी दी कि इस तरह की कोई प्रोसीडिंग नहीं है. जब मैंने उसे डायरेक्ट किया कि नहीं ये सही जानकारी दो, तो जो है उसे तो वाइस चांसलर वाज वेरी एंग्री विद मी एंड सर देन he started showing his anger on files submitted by me by putting odd remarks against me. Sir, one more thing, Registrar Dr. I.K. Mansoori, he wanted to give university security contract to a particular agency. So, sir, he rejected Bombay Security Agency's candidature on ill-valid ground. When I raised objection, I raised my objection twice. But, sir, then again, this contract was done with the signature of, the proceedings were done with the signature of my junior officer after bypassing me. Although, sir, I was the HOD of the department. Then, sir, they start harassment. Sir, then they transferred me to a VC office. Then I asked them in which capacity I'm being transferred to the Vice Chancellor office, because there is no post of Deputy Registrar. Then instead of giving me reply, sir, they transferred me to a special cell that doesn't exist. Sir, this special cell is nowhere. They transferred me to that special cell. And then that special cell, you have been transferred. Where is that order? P9 है. P9 में जब हमने रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने रिजेक्शन करा, और रिजेक्शन के बाद लिख दिया है कि आपको विशेष प्रकोष्ठ में कर रहे हैं. पेज नंबर 36. पेज नंबर 36 माय लॉर्ड. मतलब उसकी टाइप कॉपी. This order is under challenge, I think, or that order is under challenge. मतलब मेन ऑर्डर चैलेंज किया था, उसके बाद ये तो रिप्रेजेंटेशन का रिजेक्ट किया उन्होंने. P4 earlier P4 yes my lord. P4 was under challenge. Yes my lord. Now you have again been transferred to special cell. Yes my lord. P10 में P10 है ये स्पेशल सेल वाला ऑर्डर my lord. पेज नंबर 39. नहीं तो इसमें यही तो लिखा हुआ है. इसमें लिखा है कुलगुरु कार्यालय में सेकंड पैरा में, कुलगुरु कार्यालय में आपको विशेष प्रकोष्ठ का कार्य सौंपा गया है. ज्ञात है कि कुलगुरु कार्यालय विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित कार्यालय, इस कार्यालय का नियंत्रण समस्त विश्वविद्यालय एवं संबंधित महाविद्यालय पर होता है. विशेष प्रकोष्ठ का हमें सौंपा गया है, बट देयर इज नो विशेष प्रकोष्ठ स्पेशल सेल इन द ऑफिस ऑफ द वीसी. देयर इज नो ऑर्डर फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल सेल. मतलब उसकी कोई टीम नहीं है, उसका क्या पर्पस है हम पूछ भी रहे थे, हमें कुछ पता नहीं आपको, और हमें वीसी चेंबर में जाके बोल दिया कि आपको स्पेशल सेल में बैठना है. वहां पे ऐसा कोई ऑफिस भी नहीं है.
Sir, actually, it is a punishment for me. They wanted me to sit in the vice No, chancellor. इनका कहना है you have pleaded all this and you are Yes, pleading. Manoj, I have pleaded. क्यों इनका कहना है कि वहाँ कुछ है ही नहीं. अब मैं बता सर, नहीं, have you filed reply? हाँ मैंने फाइल किया ना सर. क्या कहना है आपका, वहाँ क्या व्यवस्था है? देयर इज फुल अरेंजमेंट वाइस चांसलर ऑफिस में सर. पूरे विश्वविद्यालय के अंडर में जो कॉलेजेस हैं उनका कोऑर्डिनेशन होता है, करस्पॉन्डेंस होती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फैकल्टी, परफॉर्मेंस असेसमेंट, सारा कुछ काम किया जाता है. वेयर शी इज पोस्टेड देयर एंड नहीं प्लीज लेट मी. दिस इज टोटली अधिक करना चाहिए आर्बिट्रेरी एंड एब्सर्ड सबमिशन के देयर इज नो पोस्ट. You are supposed to work under the vice chancellor, where and whenever and in what manner he wishes to take the work from him, it is your duty to obey the order. आप ये कहते हैं उस जगह सर वहाँ पोस्ट ही नहीं है. दे अरेंज ए पोस्ट जिस जगह आप काम कर रहे हैं. नहीं प्लीज सर लेट मी कंप्लीट. वो पोस्ट इन्हीं के बीसी सर के ही अंडर में है. और कितना चेंज है सर. आप यहाँ बैठती नहीं और आप यहाँ आपको ट्रांसफर किया. आप चैलेंज आप देखिए मैं कितना इंटरेस्टिंग क्या है. मेलाफाइट बताने की कोशिश तो कर रहे हैं. इनका कहना है एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो आप नहीं चाहती थी, किसी और को देना चाहती थी, और टेंडर कमेटी किसी और को देना चाहती थी. अब आप देखें सर, आप उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और भंडार में थी. ये पोस्ट यूनिवर्सिटी की अगर अच्छे शब्दों में कहें तो एक मलाईदार पोस्ट है. और आपका इंटरेस्ट इस हद तक है कि आप ये कहती हैं कि उस ठेकेदार को नहीं मिला तो ठेकेदार ने पिटीशन नहीं लगाई. ठेकेदार के सब कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने ठेका ले रखा कि हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिला देंगे, वो चैलेंज कर रहे हैं बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट बाय सेइंग कि उसे नहीं मिला है और इसके वजह से मुझे हटा दिया. वो ठेकेदार सब ही हैज फर्निश्ड ए डिक्लेरेशन सेइंग कि आई हैव नेवर बीन ब्लैकलिस्टेड, वेयर एज ही वाज फाउंड ब्लैकलिस्टेड, देयरफॉर ही वाज नॉट फाउंड इन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आप उसको ये कहना चाहते हैं और उसके केस को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, टेंडर कमेटी के जजमेंट को आप चैलेंज नहीं करती, ठेकेदार चैलेंज नहीं करता, आप ठेकेदार की ठेकेदार हैं. और आगे बताएं साहब. इन्होंने एक जगह और चलो कोई बात नहीं. हाँ डॉग्स और बताइए, आप बताइए. हाँ सर नहीं सर एक मिनट अभी देखते हैं. सर ये मुझे कह रहे हैं कि मलाईदार पोस्ट है ना. सर मैं कहना चाहूंगी कि सर ये जो इन्होंने क्वेश किया, जो उसका रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट किया, वो रिप्रेजेंटेशन था कि उसको क्योंकि ब्लैकलिस्ट किया गया. सर वो ब्लैकलिस्ट का ऑर्डर तो पहले ही क्वैश हो चुका था. और सर सेम ग्राउंड पे इन्हीं डॉक्टर महाजन के ओपिनियन के आधार पर लास्ट ईयर ईशा सिक्योरिटी एजेंसी को सेम ग्राउंड पे ही कि चूंकि उसका ऑर्डर क्वैश हो चुका था इसलिए उसको ब्लैकलिस्ट नहीं माना जाएगा, सर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. तो सेम ग्राउंड पे ही अब बॉम्बे सिक्योरिटीज को उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा रहा है. और सर ये कहना कि मैं उसकी ठेकेदारी कर रही हूँ, सर मैं किसी की ठेकेदारी नहीं कर रही हूँ. यहाँ पर मैं अपने हरासमेंट और जो मुझे पनिश किया जा रहा है मैं उसके लिए आई हूँ सर. कि आई एम नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद माई डिग्निटी. मुझे वहां बैठाल करके सर टॉर्चर किया जाएगा. वाइस चांसलर डॉक्टर जैन अपने बदतमीज व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं सर. वो कितनी महिला कर्मचारियों के साथ कितना दुर्व्यवहार कर चुके हैं सर, ये वहां पर सबको मालूम है. दैट्स व्हाई आई रिफ्यूज टू सिट देयर. और इट शुड बी रिकॉर्डेड एंड One more टेकन इन thing. कंसीडरेशन. अगर ऐसा स्पेसिफिक एलिगेशन है, आज तक किसी लेडी का एलिगेशन नहीं है. बीसी लेवल के एक मोस्ट डिग्नेटरी आदमी के खिलाफ इस तरह का सर असत्य आक्षेप लगाना इनटॉलरेबल है. तो शी शुड सबमिट एन एफिडेविट, देन वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट हर. अगर ऐसा है ठीक है. हाँ हो गया. सर मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक तो मेरे ये ऑर्डर्स कैश किए जाएं. और चूंकि डॉक्टर महाजन ने मुझ पे सर इतने खराब आरोप लगाए हैं कि मैं मलाईदार पोस्ट, सर मेरे पूरे करियर का मैंने कभी एक सिंगल पैसा जो अगर कभी मैंने टच किया हो, सर इसकी जांच कराई जानी चाहिए ताकि ये चीज क्लियर हो जाए. जो इन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं ये ट्रूथ है या गलत है सर, तो इसकी जांच कराई जाए सर. सर दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ मोर देन 3 लाख स्टूडेंट एंड दे आर पनिशिंग मी. ठीक है, हम देखते हैं. 3 लाख स्टूडेंट में से एक भी आया क्या फिर पिटिशनर है? चलो अब देखते हैं. दूसरा सर इनका एक और मैं बताऊं. आपको ये कहना कि मेरा बहुत ही अच्छा करियर है, तो इनकी प्लीडिंग में है सर कि पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन में रहे. उस कमीशन में भी सर लगभग इसी तरह का बिहेवियर था. दे हैव रिटन ए देखते हैं अभी. देखो सर मैं एक चीज सर वन मोर थिंग सर, ये जो जिसकी कह रहे हैं उसमें मैंने ऑलरेडी जब मैंने हायर एजुकेशन में उनकी इरेगुलर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट मेल किए हुए हैं सर, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मेरे खिलाफ एसएन शो कॉज नोटिस इशू किया जिसका मैंने कोर्ट में ऑलरेडी केस लगा रखा है. In fact, my lord, that case is also listed before your lordships today. Only उन लोग ने
रेगुलेटरी कमीशन की सैलरी विथहोल्ड करी थी गलत तरीके से, तो हमने वो सैलरी लेने के लिए केस लगाया. लॉर्डशिप हैव इशूड नोटिस एंड आफ्टर नोटिस द मैटर इज लिस्टेड बिफोर टुडे ओनली योर लॉर्डशिप. देखते हैं. यस मैडम.